Welcome to Straight Talk, and I want to wish everyone a good evening. Happy almost Friday, almost weekend. आज हम आपके साथ एक नॉन न्यूज़ रिलेटेड इशू के ऊपर बात करना चाहते हैं, but it is increasingly emerging as a very important topic to discuss, especially United States में. आज मैं आपके साथ बात करूँगी उन different तरह के scams and fraud activities जो कोविड की वजह से increase हुई हैं या वैसे भी काफ़ी heightened activity में हमें देखने को मिल रही हैं. So we're going to be going through some common and popular scams that exist, and we're also going to be covering जैसे हमें आजकल news reports बता रही हैं the various COVID related scams जो लोगों को target कर रहे हैं, चाहे वो money side से हो या health side से हो. If we look at some of the news that's coming out, some of the biggest agencies in the United States have warned banks and customers that there are going to be huge number of COVID scams. You can see, from the Department of Homeland Security, a recent article came out showing this, that people should be aware of the various scams that are going to be happening as a result of COVID. If we look at some of the other news that's coming out, even the UN has warned, the United Nations has warned against health-related and medical-related scams that will use COVID testing as an excuse to get your personal information. In fact, if we look at some of the other scams, even the BBB, the Better Business Bureau, which is a consumer watchdog, आप कह सकते हैं, it's an organization, non-political, non-partisan, independent third-party organization, which monitors the activities of various businesses for the protection of consumers. The Better Business Bureau, उन्होंने भी release किया है that there's going to be some mandatory COVID text scams जो आपके फ़ोन पे टेक्स्ट के ज़रिए आपको शायद आएंगे. So these are all things that are going on. Even the Federal Reserve has issued some warnings about this. So we're going to be covering all of these, and I'm going to walk you through some ways on how you can step one, spot these scams. कैसे आप इनको identify कर सकते हैं कि ये कोई चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, ईमेल हो, इन पर्सन भी हो, कि आप कैसे इनको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर हम आपको बताएंगे कि एक बार आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, आप कैसे इनको या तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, या इफ़ अनफॉर्चुनेटली आप विक्टिम बन चुके हैं किसी भी इस तरह के स्कैम का, कैसे आप फिर कुछ मेजर्स ले सकते हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट या किसी एजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए हो, उस जो आपके साथ स्कैम हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए. सो देयर इज़ वेरियस सेफ गार्ड्स. हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे after this break. Welcome back from the break. You're watching Straight Talk, and आज हम कुछ स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के बारे में आपको जानकारी देंगे जो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं, बट कोविड रिलेटेड सिचुएशंस को लेके अब और भी इंक्रीज्ड एक्टिविटी उनकी देखने को मिली है. इन फैक्ट सम ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव वार्नड बोथ बैंक्स and customers about the COVID related scams that will be taking place and how people can protect and safeguard themselves against these scams. In fact, there's even some warnings coming out from the federal government around the COVID related scams and how people and their money can be affected. Even the BBB, the Better Business Bureau, जो exist करता है consumer protection के लिए, उन्होंने भी अपनी warning release की है regarding some टेक्स्ट, आपके फ़ोन पे टेक्स्ट के स्कैम्स जो आ सकते हैं, एंड आप उनके अगेंस्ट कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. In fact, it's gotten so bad that the United Nations even is now warning people to be aware of some of these COVID-related scams that are popping up all over the world. So देखिए, जहाँ तक के scams आते हैं, we have all most likely been a victim of them at one time or another. कहीं आपकी ईमेल में कुछ आ गया, आपकी ईमेल
email hack हो गई, आपको robocallers आ रहे हैं, you get something in the mail and you accidentally, send your information out. So scams are pretty common. But in this now, new COVID pandemic era, we're going to go through the common scams, and we're also going to go through some of the newer scams that are coming up, like the charity scams. So the big items we're going to cover today are money scams, things like wire transfers, send money here, give us your checking, banking information. We're going to go through some email scams. So if you get a suspicious email or it looks like it's legitimate, what you need to look out for. The big one now is the IRS scams, because once again, in the United States, a lot of people, if not the majority of the country, has received some form of payment from the IRS to help with their financial difficulties. So we're going to go over some of those. We will go over some phone scams also. जब आपको robocalls आती हैं, what they're trying to get from you on the phone or via text. And last but not least, like I said, we're going to go through some charity scams that unfortunately इतनी घिनौनी हरकत करने का कोई सोच भी कैसे सकता है. But yes, charity के नाम पे लोग बहुत fraudulent activity करते हैं. So unfortunately, that is the way of the world. So let's get started. Money scams. Money scams mostly revolve around wire transfers, right? So wire transfers, why do thieves love wire transfers? This information I'm going to get to in a little bit, but first I should tell you, wire transfers, thieves love them because it's an easy way for them to get a hold of your money. Quickly वो money उनको मिल जाता है. And you can't get it back, It's not like आपने गलती से किसी कंपनी को या किसी दुकान को, किसी reputed brand को पैसे दे दिए and वो आपको return कर देंगे. If it's a scam artist, it's a fraud, they will try to get your money the quickest way possible, and do it in a way that can't be traced to them, right? And by the time you find out, it's too late for you to do something. So, with the wire transfers, आप money किसी को wire करते हो, वो immediately available हो जाता है retrieval के लिए, right? Before you can even do something about it. And unfortunately, once the money leaves your bank account, it is gone. Even the bank cannot do anything about it. That's the unfortunate truth of wire transfers. So once again, if you feel that you are being put in a situation that you have to wire someone money and वो बहुत आपको urgently कह रहे हैं कि नहीं अभी भेजो, you should be suspicious, right? I'll share a personal story with you. This happened to me, unfortunately quite recently, about 6 months or so back, that I was falsely made to believe that one of our office utility bills was overdue, and because of the situation at the time, I wasn't able to verify whether this bill was overdue or not, and someone called pretending to be from the utility company saying that our utility service, our electricity would be turned off if we didn't pay the bill, and because of the overdue bill, that the only way to pay it was via wire transfer. And मैं आपको यहाँ full disclosure में बता रही हूँ, for a minute there I believed them. I almost fell for it. I almost wired them hundreds of dollars, almost. Thankfully, I didn't, because I realized that, wait a second, that is actually illegal. That कोई आपको ऐसे threaten नहीं कर सकता that, we're going to cut off your electricity if you don't wire us money. But these people were very convincing, and they told me that, listen, we can't take a credit card, we can't do a direct bank. Oh, your banking information, we don't have it on file. We updated our systems. So they will make up whatever story you can ever imagine. But the point here is that if it's legitimate, you can take some steps to figure out what it is, how to identify if it's legitimate or not. Namaste, you're on air. Hello. Thank you. How are you? I'm good. How are you? Bataiye. I'm good. I just want to tell you that your program, I think I'm watching from like 2-3 days, but it doesn't make any sense to me because the subject you brought to us is something like I don't really understand.
आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? आई एम कॉलिंग, मैं कॉल कर रहा हूँ शार्लोटसविल वर्जीनिया से। अच्छा जी। तो आधा आप हिंदी में बोलती हो, आधा इंग्लिश में बोलती हो, तो जी। something I don't really like your programs, you know. That's That's okay, all I sir. want I to tell mean, you. we appreciate your feedback anyways. Thank you for watching. And, Wow. you know, our goal here is to bring some level of awareness and information. हम आपको जानकारी provide करने की कोशिश कर रहे हैं. And once again, we're trying to do it in the way that we can best communicate with all of our viewers. So getting back to these wire scams, how can you tell if someone is trying to force you to wire money and they're a fraud, they're a scam artist? First of all, it will be someone who, you know, is pretending to be, once again, from a legitimate company, a utility company, you know, some distant relative that you haven't seen in a long time. You know, so you should always ask a question, and especially when it's a company like a utility. Remember, उनके पास आपकी information होती है फाइल पे. They have this stuff stored on their databases. So अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि हम कॉन एडिसन से फ़ोन कर रहे हैं एंड आपका बिल ओवरड्यू है एंड आपकी पेमेंट्स ही हमें रिसीव हुई, अभी हमें अपनी पेमेंट्स भेजो, you should always ask, okay, well, can you verify my address? Can you verify some information that will prove that you are actually Con Edison, for example, right? So that's one kind of a money scam. If you feel that you have wired money to a scam artist, या आप confirm कर लेते हो इस बात को, you should still file a complaint. To do that, if you've used some of the two main wire transfer companies, उनकी information आप screen पे देख सकते हैं. You can contact them directly to let them know. There may not be much they can do, right? MoneyGram and Western Union are the two popular ones. उनकी information आपकी screen पे लिखी हुई है. So you can definitely contact them. But definitely contact your bank as well. Because even if अगर आपको वो पैसा नहीं वापस मिल सकता, it's important कि आपके पास written record, आपके पास paper trail हो कि ये आपके साथ चीज़ हुई. And you should also report it to your local authorities. Because once again, if a crime is committed, there should be a record of it, right? Another thing you can do is file a complaint with the Federal Trade Commission, that is in the United States, the governing body for, once again, consumer protection. It governs all businesses and commerce for your protection as a consumer. So you can always, and you should, if you feel that you've been a victim of the scam, file a complaint with the Federal Trade Commission. Another big scam that's coming up in the money subject these days is the advance fee loan. So सारों को आज की डेट में कोई ना कोई financial issue face हो रहा है. We are all going through an economic crisis in this country. So, you know, it seems very attractive that someone is willing to give you an easy loan, like we say sometimes, right? कि आप no credit check required, no collateral, we'll give you a loan. But you should be able to recognize कि ये लोन कोई आपको official lender या banking institution offer कर रही है या कोई third party loan company offer कर रही है, or is it a fraud, right? The advance fee loans are the ones that आपको guarantee करेंगे कि आपको loan मिल जाएगा, but आपको loan से पहले एक fee देनी पड़ेगी. So always be aware of these because, you know, if you have to pay money to receive money, you should always make sure you do आप अपनी पूरी जानकारी करके उस loan में engage करते हैं, because once again, it could easily be a fraud or a scam artist looking to get your information or looking to just make some money off of you. So do make sure you're checking all of these. So once again, we're going through some common scams जो आज COVID की time में और भी बढ़ चढ़ के लोगों को fraud commit करने की कोशिश कर रहे हैं. Conversation ऐसे ही जारी रहेगी. यहाँ पे हम छोटी सी break के लिए रुक रहे हैं. When we come back, we'll continue with email scams, popular scams जो आपकी email को hack करके आपकी information या identity चोरी करने की कोशिश करती हैं. We'll do that right after the break. Welcome back from the break. You're watching Straight Talk, and आज हम बात कर रहे हैं कि
क्या क्या कॉमन स्कैम्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो वैसे भी काफ़ी हद से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रही हैं, आज की डेट में कोविड के टाइम में और भी उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है, एंड जो आम जनता है, कंज्यूमर्स हैं, वो कैसे विक्टिम्स बन रहे हैं इन स्कैम्स के, उनकी भी हम थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इन द होप्स दैट इस इंफॉर्मेशन के साथ आप शायद अपने आप को बचा सको एंड आप इन तरह के किसी स्कैम के विक्टिम ना बनो। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट सुन लेते हैं। नमस्कार, आप ऑन एयर हो। जी नमस्कार, हम भरिंदर आलूवालिया कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। जी वेलकम आलूवालिया जी, आपका क्या कमेंट है? हाँ, मेरा कमेंट ये है कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाने के लिए कि किस किस तरह के स्कैम्स चलते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको कॉल आ सकती हैं IRS से, FBI से, और ये सब जो कॉलें हैं ये रोबो कॉल्स हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं या दिल्ली से या बॉम्बे से, और उनके कुछ लोग दिल्ली से और बॉम्बे से पकड़े भी गए हैं और उनकी एजेंसीज को उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रखा हुआ है। अब ये जो रोबो कॉल्स आती हैं इनका 800 नंबर होता है और इनको रिपोर्ट करने, FTPC को रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये रोबो कॉल्स हैं और इनके जो ओनर्स हैं वो कहीं भी दुनिया में हो सकते हैं। ये सैटेलाइट फोन से यूज करते हैं, उसका नंबर हमारी फेडरल एजेंसीज के पास नहीं होता है जी। अब सवाल ये है कि जो भी आपको कॉल आते हैं, अगर वो नंबर आप नहीं पहचानते जी, द बेस्ट तरीका है आप टेलीफोन मत उठाइए। अगर कोई वॉइस मैसेज छोड़ता है तब आपके पास पता लग जाता है ये कौन कॉल कर रहा है और मैसेज क्या है। आप नोट करके अपने पास लिस्ट बना के रख लें, होक्स कॉल की और रोबो कॉल्स की, कि कभी जरूरत पड़े तो आप उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी जी जी। अभी FBI वाले और IRS वाले ये कभी भी आपको पर्सनली कॉल नहीं करेंगे। अगर उनको जरूरत होगी तो आपको घर में चिट्ठी आएगी। ये आप गांठ बांध के रख लें, ये लोग कभी कॉल नहीं करते। जी जी जी। यूटिलिटी बिल्स वाले, वो कंपनीज वाले, वो कभी आपको कॉल नहीं करेंगे एरियर्स के लिए। अगर कोई एरियर्स आपके ड्यू हैं वो रिमाइंडर इश्यू करेंगे, आपके पास वॉइस मैसेज छोड़ेंगे। आप उनको वॉइस मैसेज पे कंफर्म करें दोबारा कॉल करके कि कंपनी है और आपके पास प्रीवियस बिल है या पेड बिल है तो आप चेक कर सकते हैं और फिर उसको पेमेंट करें। जी। वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे भेज सकते हैं, लेकिन ओनली टू द नोन सोर्स, क्योंकि एक दफा पैसा चला गया वो वापस वेस्टर्न यूनियन आपको नहीं देगा। जी, तो इसलिए जी। ये बहुत जरूरी है कि आपको कोई चीट ना करे। जैसे कोई कंपनियां या बैंक्स आपको कॉल करती हैं तो वो आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉल करती हैं, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं निकले। हाँ जी 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 आप जी। क्यों उनकी कॉल लेते हैं? जी 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 जी। तो ये आप कोशिश करें कि आप ये कॉल ना लें, और खासकर मैं उन हिंदुस्तानियों को ताकीद कर दूं जो कि जिनके इमिग्रेशन केसेस चल रहे हैं या कुछ रेगुलराइजेशन के केसेस हो रहे हैं कि वो इलीगल भी हैं, तब भी आपको FBI कॉल नहीं करेगी, IRS वाले कॉल नहीं करेंगे, आपको चिट्ठी देंगे। अगर आप इलीगल भी हैं, आपको डिपोर्ट नहीं करते वो कभी भी। आप ये गांठ बांध करके रख लीजिए, ये सब बेकार की बातें हैं। होशियार रहिए। और सबसे बेस्ट तरीका ये है जनाब, अगर आपको नंबर नहीं पता, आपको उठाना नहीं चाहिए। थैंक यू जी जी। डोंट आंसर द फोन। या थैंक यू सो मच आलूवालिया जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि जो ऐसी एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई फेडरल एजेंसी हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल बैंक की एजेंसी हो, वो कभी भी आपको कॉल करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। शायद वो आपको कॉल करें अगर कोई बैंक है या कोई ऐसा वेंडर है, कुछ आपको बेचने के लिए ज़रूर कॉल करेंगे, बट आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं कॉल करेंगे। नमस्ते, आप ऑन एयर हो। नमस्ते अश्मिता जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए सतीश जी।
जी अश्मिता जी, इसमें देखिए आज आपने बड़े अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन दे के वो कारण बता दिए कि कहाँ कहाँ से ये इस तरह की फेक मैसेजेस आ सकते हैं। जी सवाल ये है कि अब करना क्या है आगे, जी जी कि जी इनसे बचाव कैसे किया जाए। जी जी तो देखिए हमारे यहाँ सीनियर सेंटर में वो इस तरह के ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप्स आते हैं और उन ग्रुप्स में हमें कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं कि अगर इस तरह की आपको कोई रोबो कॉल्स आए, इस तरह की फ्रॉड कॉल्स आए तो आपने क्या करना है। तो देखिए 2 3 4 उन्होंने सिंपल बातें बताई हैं। जी पहली चीज, अगर आपसे कोई पैसे मांगते हैं, हाँ इसमें सभी पैसे तो खूब मांगते हैं, सभी पैसे मांगते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई बैंक का या कोई इस तरह का आपसे नंबर मांगा या कुछ किया तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पे सीनियर सेंटर वाले कि सबसे पहले आप अपने बैंक को कॉल कीजिए और Exactly. बैंक को कहिए Yeah. कि भी इस तरह मेरे को कुछ कॉलें आ रही हैं फोन पे, जी। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, आप प्लीज मेरे अकाउंट के ऊपर होल्ड लगा दीजिए। जी। बैंक वाले बड़ी खुशी खुशी होल्ड लगा देंगे। Absolutely. दूसरा काम, फौरन अपने क्रेडिट कार्ड को कॉल कीजिए, उनको कहिए कि इस तरह कुछ लोग मेरे से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरी मदद करो। क्रेडिट कार्ड वाले फौरन आपके उसके ऊपर होल्ड लगा देंगे। जी। और तीसरा, अगर कोई आपको धमकाता है कि हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपको आपका ये अकाउंट बिजली करवा बंद कर हम देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, यस दैट इज ऑल्सो हाँ जी, फेक। हाँ जी आपकी कार उठा लेंगे, समथिंग लाइक दैट। उस केस में हमारे सीनियर सेंटर वाले कहते हैं कि आप फौरन पुलिस डिपार्टमेंट को जी। कॉल कीजिए जी। कि इस तरह ये मेरे को धमका रहा है। जी, जी, और जी। आखिरी एक बड़ा टिपिकल, मेरा बेटा मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ कैलिफोर्निया, मेरे को ईमेल आती है, पापा मेरे को फौरन से $1500 भेज दो, मेरे को एक रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। वाओ। मुझे पता है कि मेरे बेटे के पास क्रेडिट कार्ड भी है, उसके पास चेक बुक भी है, उसकी Right. जेब में भी कैश है क्योंकि वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया है, कभी खर्चा हो जाता है। ये कुछ ईमेल मेरे को बड़ी स्ट्रेंज सी लग रही है। जी जी उस केस में उस ईमेल के ऊपर एक्ट मत कीजिए। Absolutely. सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स को कॉल कीजिए आसपास में कि भी इस तरह मेरे बेटे की आपको भी कोई ईमेल आई है। जी। अश्मिता जी आप हैरान हो जाएंगे, कम से कम 2-3 और ऐसे रिलेटिव्स My कहेंगे कि goodness. अरे सतीश भैया हम आपको कॉल करने वाले थे कि आपके बेटे की हमें कॉल आई है, तो ये सब क्या हो रहा है, उसको तो कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई। Right. Then what we do is we call our son and tell him कि बेटा इस तरह आप कॉन्फ्रेंस में हो, हमें पता है सब ठीक है ना। बोले हाँ पापा सब ठीक है, तो कोई चिंता तो नहीं। नहीं बेटा, तो हम उसको ये नहीं कहते कि हमें इस तरह की ईमेल आई है, हम ये कहते हैं बेटा तेरे को कोई पैसे की जरूरत तो नहीं है, कोई हैवी एक्सपेंडिचर, कोई इस तरह की आपने कोई डील तो नहीं करनी किसी से, पैसे की जरूरत है तो बताओ। He says, नहीं पापा पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अगर होती तो मैं आपको पहले बताता, course. सो आई एम जस्ट फाइन। तो हम उसको कहते हैं अच्छा बेटा हैव ए नाइस डे। जी। तो उसको हम बिल्कुल से स्केयर नहीं करते, डराते नहीं है, लेकिन अपने रिलेटिव्स को हम थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं। तो जी ये थोड़े से सिंपल एक्शंस हैं। वो कहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई आपको शक होता है, आप डरे हुए हो, आपको उस वक्त सहारे की जरूरत है, तो सहारा आप या बैंक वालों से लीजिए या पुलिस डिपार्टमेंट से लीजिए, या जिस रिलेटिव का उसमें आपके ईमेल में नाम आया है उस रिलेटिव को कांटेक्ट करके जी। उसका भी हालचाल पूछ लीजिए, जी। और सिचुएशन के मुताबिक उसके साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो जी। शेयर कीजिए कि जी। क्या बात हुई है। जी। नहीं कर सकते तो बिल्कुल शांति से रहिए। जी, तो जी। ऐसे वक्त पे पैसा बिल्कुल मत भेजिए, कुछ Absolutely. भी हो जी, जाए। जी, कोई जी। भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी यहाँ पे यूटिलिटी का कोई भी आपसे पैसा जो है इस तरह फोन से नहीं मांग सकता। जी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं अश्मिता जी, जो हम आपस में सीनियर्स जो है एक दूसरे को बताते रहते हैं, क्योंकि मोस्टली सीनियर्स यहाँ पे अकेले रहते हैं, उनके बाल बच्चे यहाँ हैं या नहीं के बराबर है।
है जो है भी। तो इसलिए सीनियर्स को ही सेल्फ एम्पावर्ड रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी चोर तभी चोरी करेगा जब हमारा ताला उससे खुल जाएगा। तो अपना ताला मजबूत रखिए, एंड बंद रखिए। जी 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 हौसला अपना बुलंद रखिए। जी। धन्यवाद अश्मिता जी। थैंक यू जी। भारत माता की जय। थैंक यू सतीश जी। जिस तरह जैसे सतीश जी ने आपको अभी बताया है, सबसे आपका बेस्ट वेपन इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के स्कैम के लिए आपकी अपनी निगरानी, आपकी अपनी अवेयरनेस एंड विजिलेंस हो सकती है। जैसे सतीश जी ने अभी कहा एंड उनसे पहले बरिंदर आलूवालिया जी ने, कि अगर आप इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो आपको ये स्कैम, आप बच सकते हैं इनसे। मोस्ट ऑफ देम काफ़ी बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बट सिर्फ कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ सिंपल सवाल पूछने से आपको पता लग सकता है कि ये सचमुच की कोई इंक्वायरी है या कोई स्कैम, कोई झूठ मूठ, कोई फ्रॉड की एक्टिविटी है। कन्वर्सेशन हम ऐसे ही करते रहेंगे इस ब्रेक के दूसरी तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एंड आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कुछ पॉपुलर स्कैम्स की, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हमें उनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो वी थॉट के सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम थोड़ा उनको जानकार करें इन चीज़ों के बारे में, ताकि एटलीस्ट अगर आपको अवेयरनेस है, कुछ हम आपको स्टेप्स दे सकते हैं, आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आई वाज टेलिंग यू अबाउट ईमेल स्कैम्स। ईमेल में जब स्कैम आपको कोई करने की कोशिश करता है, उनका क्या गोल होता है? वो बेसिकली आपकी ईमेल के थ्रू आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करके, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी हो या आपकी दिस इज़ एक्चुअली वी गोना शो अ लिटिल बिट लेटर, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी हो या आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बैंकिंग रिलेटेड या यू नो किसी और थर्ड पार्टी वेंडर रिलेटेड, कोई डिलीवरी सर्विस, कोई अगर आप वेनमो ऐसी चीज़ यूज़ करते हो, वो इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल के थ्रू चोरी करके उसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप सोचिए, आपकी ईमेल में कितने सारे आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी होता है, काफ़ी लोगों के टैक्स रिटर्न्स उनकी ईमेल में आए होते हैं। सो देयर इज सो मच स्टफ। अगर कोई आपकी ईमेल को एक्सेस कर ले तो वो सारी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, एंड उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू टू हर्ट यू, राइट? सो ईमेल में आपका कोई एक्सेस कैसे गेन करेगा? इट्स प्रीटी सिंपल। आपको कोई ईमेल आती है, राइट? देखने में वो बड़ी लेजिटिमेट लगती है, चाहे वो किसी बैंक से हो, किसी आपके पुराने कोई जानने वाले से, जैसे कॉलर ने अभी शेयर किया, आपके किसी रिलेटिव, आपके अपने बेटे से हो सकती है। बट सबसे पहले आपको चीज़ ये देखनी चाहिए कि जब आप ईमेल की सब्जेक्ट में जाके देखते हो, सेंडर का जो स्पेस होती है, उसमें जो सेंडर की ईमेल एड्रेस है, क्या वो आपको लेजिटिमेट, क्या वो आपको सही लग रही है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको ईमेल आई है बैंक ऑफ अमेरिका से, जो सेंडर की लाइन है उसमें इट शुड से फॉर एग्जांपल communications@bankofamerica.com, ये तो होगी लेजिटिमेट, असली की बैंक ऑफ अमेरिका की ईमेल। अब अगर कोई आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, वो सेंडर का जो फील्ड है उसमें लिखा होगा मे बी bankofamerica@yahoo.com, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि अगर लेजिटिमेट बैंक ऑफ अमेरिका की ईमेल है तो उन्हीं का .com की एंडिंग होगी, ना कि किसी और थर्ड पार्टी की। अगर कोई स्कैम कर रहा है देन दे आर प्रिटेंडिंग टू बी बैंक ऑफ अमेरिका। अब वो क्या करेंगे, उस ईमेल में आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, या आपको कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने को कहेंगे, या आपको कोई लिंक क्लिक करने को कहेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज उस एक्शन के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी ईमेल को खतरे में डाल सकते हैं। सो कभी भी आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई फेडरल एजेंसी, कोई बैंक, कोई थर्ड पार्टी जो लेजिटिमेट है, चाहे वो कार कंपनी हो, मॉर्गेज कंपनी हो, कुछ भी आप कह लीजिए, कभी भी आपको कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल के जरिए ये नहीं मांगेंगे। एंड ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको कभी भी ईमेल आती है जो आपसे ये इंफॉर्मेशन मांग रही है, इट इज़ अ स्कैम। बिकॉज ईमेल के जरिए आपसे कभी भी कोई भी लेजिटिमेट कंपनी ना आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगी, ना आपका बैंक अकाउंट का फुल नंबर, कोई भी
पिन जो आपके सिक्योरिटी में रिलेटेड है, कोई भी पासवर्ड, कोई भी आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपकी आपकी आइडेंटिटी को जोड़ सकती है कि यस ये आपकी मेन आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है। सो इस चीज़ के लिए आप बहुत केयरफुल रहिए, बिकॉज ईमेल में बंदा जल्दी जल्दी में कभी कभी देखता है, एंड दीज स्कैमर्स आर वेरी स्मार्ट नाउ कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लेके आपको इस चीज़ में स्कैम कर सकते हैं। सो moving on from emails, and once again, one of our callers also said, अगर आपको कोई for example बैंक से email आती है, आप उसको verify नहीं कर पा रहे कि ये legitimate है या नहीं है, call your बैंक को कॉल कीजिए। कोई भी जो कंपनी आपको ईमेल करी है ना, आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रही है जो आपको वियर्ड लग रहा है, आपको अजीब लग रहा है कि ये क्यों मुझसे ये मांग रहे हैं, उनको कॉल करिए, उनसे वेरीफाई कीजिए कि आपने मुझे ऐसी कोई कम्युनिकेशन भेजी है, एंड आपको वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। जहाँ पे ईमेल स्कैम्स की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे जैसे कॉलर ने अभी हमारे साथ अपना इंसिडेंट भी शेयर किया, वहाँ से फ़ोन स्कैम्स की भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशली आज की डेट में इश्यूज़ आ रहे हैं। फ़ोन स्कैम्स में देखिए हम सारे अपने फ़ोन के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, राइट, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, कॉल्स कर रहे हैं आजकल तो फेस टाइम, वीडियो कॉल्स, हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, राइट। सो इन चीज़ों में यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट यू कैन बी स्मार्ट। फ़ोन स्कैम्स में अगर आपको फॉर एग्जांपल कोविड रिलेटेड कोई आपको टेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से कि आपको मैंडेटोरी कोविड टेस्ट करना है, एंड आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए या ये अमाउंट ऑफ मनी सेंड कीजिए, दैट्स अ स्कैम। आपको कभी भी कोई फेडरल डिपार्टमेंट टेक्स्ट के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। फ़ोन स्कैम्स और भी तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफरिंग टू सेल यू हेल्थ इंश्योरेंस। एक बहुत ही पॉपुलर डायबिटीज़ का फ़ोन स्कैम चल रहा है जो ऑफ़र करता है, जो डायबिटीज़ की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड इक्विपमेंट होती हैं उनको सस्ते प्राइस पे आपको डायरेक्टली बेचने के लिए। That's a scam. So you have to be careful. अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन या टेक्स्ट मैसेज आता है, सबसे पहले या तो खुद या अपने किसी फैमिली मेम्बर को कहिए कि इसको गूगल करो। ये जो एंटिटी, अगर आपको कोई फ़ोन पे किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, उनसे पूछिए आपकी कंपनी का पूरा नाम क्या है। आई वॉन्ट टू वेरीफाई कि आप लेजिटिमेट कोई कंपनी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस, एनी ऑफ दीज थिंग्स। एज अ कंज्यूमर आपका बिल्कुल हक बनता है, बिफोर आप उनको कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन दिए, आपका हक बनता है वेरीफाई करना कि वो लेजिटिमेट है या नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बेटर बिजनेस ब्यूरो है यूनाइटेड स्टेट्स की वॉच डॉग एजेंसी, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज स्कैम के बारे में अलर्ट किया है, विच सेज दैट US फेडरल गवर्नमेंट आपको टेक्स्ट कर रही है, एंड इट सेज दैट द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चाहते हैं कि आप मैंडेटोरी ऑनलाइन कोविड का टेस्ट लीजिए। अब आप खुद सोचिए, कोविड जो एक वायरस है उसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे हो सकता है? You can't do it. That's a scam. So beware of these things. एक और गवर्नमेंट imposter text ऐसे शुरू होता है, IRS COVID-19 news. They're pretending to be from the IRS. देखिए ये चीज़ें हम जितनी ज़्यादा बार बार आपको कहें उतना इनफ नहीं है। कभी भी आपको IRS, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो इमिग्रेशन हो, USCIS हो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, कोई भी फेडरल एजेंसी आपको डायरेक्टली फ़ोन के ज़रिए ऐसे नहीं कम्युनिकेट करेंगी जहाँ पे आपको कोई उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़े। अगर आपको कोई ऐसी कम्युनिकेशन आती है, चाहे वो डायरेक्टली फ़ोन के ज़रिए हो या टेक्स्ट के ज़रिए या इवन ईमेल के ज़रिए, आप ज़रूर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स को नोट करके वेरीफाई कीजिए कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं। वंस अगेन विद द फोन्स आजकल रोबो कॉल्स भी बहुत बन गई हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये कॉल्स
कॉल सेंटर्स, चाहे वो इंडिया, चाइना या जहाँ भी आप कह लो दुनिया से वाया राउट होके आती हैं. सो इट्स वेरी हार्ड टू रिपोर्ट द नंबर्स, इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेस them or track them. Law enforcement of course कितना कर सकती है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इन स्कैमर्स को जिस तरह के हथियार दे देती है, there is nothing we can do but to protect ourselves. You can be aware, right? So once again, even the World Health Organization is saying कि आजकल क्रिमिनल्स फ़ोन एंड टेक्स्ट के ज़रिए आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन एंड आपके जो सेंसिटिव डेटा है उसको चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं. स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बैंक अकाउंट नंबर्स, your date of birth, your full name, your current address, and then in some way they will ask you कि आप हमें पैसा वायर कीजिए, and that it is some urgent situation and we need you to do this, right? So once again, the first step is always to question it. कुछ आपको suspicious लग रहा है उसको question कीजिए, उसको verify कीजिए. Once again, जहाँ पे ये सारी कोविड की सिचुएशन हो रही है, everyone is distracted, they're too busy dealing with all of the negative impacts of this pandemic, चाहे वो health crisis हो या economic crisis, but that doesn't mean that जो criminals हैं उन्होंने अपनी criminal activity करनी बंद कर दी है, right? So unfortunately that is the world we live in, and जितना हम अपने आप को aware रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे इन बातों में, उतना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चैरिटी स्कैम्स, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक घिनौनी चीज़ है, बट लोग इस तरह की सिचुएशन को एक चैरिटी के बैनर के अंडर करके भी स्कैम करने की कोशिश करते हैं. सो ये स्पेशली आपको सोशल मीडिया पे एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे आपको देखने को मिलेंगे. चैरिटी स्कैम्स में वंस अगेन जो सारे फ़ोन नंबर्स जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं उनको वेरीफाई कीजिए. कोई भी चैरिटी लेजिटिमेट होगी, उनकी वेबसाइट होगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. अगर उनकी वेबसाइट पे कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उसको मैच कीजिए, क्या वो मैच करता है आपके उस फ़ोन नंबर के साथ जिसमें आपका कम्युनिकेशन हुआ है. अगर आपको कोई भी ईमेल आती है, वंस अगेन उनका सेंडर वाला फील्ड चेक कीजिए कि जिस सेंडर ने ये भेजी ईमेल, क्या वो एक्चुअली वही चैरिटी से आई है या कोई प्रिटेंड कर रहा है किसी चैरिटी से. फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस है, वेरी पॉपुलर चैरिटी. रेड क्रॉस आपको ईमेल भेजता है, गेस व्हाट, उनका जो एट है @redcross.com होगा, ना redcross@yahoo.com, है ना. सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं. एंड वंस अगेन सोशल मीडिया पे आजकल कितना कुछ देखने को मिलता है. सिर्फ आप ही डिसाइड एंड डिटरमिन कर सकते हैं क्या चीज़ सही है क्या नहीं, बट उसके लिए आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा. वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे the best advice is to be cautious, to be extra vigilant जहाँ पे आपकी personal information concerned है. कुछ important websites मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ. अगर आप इन किसी भी scams के साथ अगर आपका कोई encounter हुआ है या आपको लगता है शायद आप किसी scam में involve गलती से हो गए हैं, unfortunately जो सबसे पहली website है वो FTC Complaints Assistant की website है. FTC is the Federal Trade Commission. Once again ये फेडरल बॉडी एग्जिस्ट करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए. सो इनको ज़रूर यूज़ कीजिए. एंड एट द वेरी लीस्ट अगर आप इनके साथ कंप्लेंट फाइल करते हैं उसका रिटर्न रिकॉर्ड है. दूसरी वेबसाइट consumercomplaints.com फ्रॉम द FCC विच इज़ द फेडरल कम्युनिकेशंस बॉडी. जो FCC है वो गवर्न करती है आपका टीवी, आपका फ़ोन, आपका टेक्स्ट. अगर आपको कोई टेक्स्ट के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए कोई स्कैम आता है, आप FCC में भी रिपोर्ट कर सकते हैं. उसका लिंक स्क्रीन पे है. जो लास्ट 3 वेबसाइट्स है irs.gov, cdc.gov एंड bbb.org. irs.gov इसलिए मैंने ऐड किया बिकॉज जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आज सबको स्टिमुलस पेमेंट्स मिल रही हैं, कईयों को नहीं मिली या कईयों को मिलने वाली हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पे फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड अगर कोई आपको किसी भी स्कैम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, आपकी स्टिमुलस पेमेंट लेके, आपके किसी भी टैक्स रिलेटेड इशू को लेके, आप पहले इस IRS वेबसाइट में जाके कंफर्म कीजिए कि जो
जो वो आपसे मांग रहे हैं क्या वो इस चीज़ के साथ मैच भी करता है, बिकॉज वंस अगेन IRS आपको कभी भी डायरेक्टली कॉल ऐसे नहीं करेगी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के लिए। नेक्स्ट वेबसाइट cdc.gov, CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। CDC की वेबसाइट में आपको सारे कोविड रिलेटेड न्यूज़ एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई क्लेम करता है कि हम CDC की तरफ से मैंडेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं या CDC की तरफ से आपकी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, पहले आप CDC की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, उनका कांटेक्ट होगा वहाँ पे, उसके साथ आप मैच कीजिए क्या ये सेंस भी बनाता है। बिकॉज वंस अगेन CDC कभी आपको डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट नहीं करेगी आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड लास्टली bbb.org, once again the Better Business Bureau. This is a independent watchdog organization, once again जो consumers की benefit and protection के लिए बनी है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप businesses के ऊपर चेक भी कर सकते हैं एंड किसी भी बिजनेस के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एंड जहाँ स्कैम्स की बात आती है आप उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं bbp.org पे। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को रैप अप करती हूँ आज। आई होप कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस, फीडबैक, आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं ashmita@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com, and I'll see you all next week. Have a good weekend.